بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں ہوں ریا چودھری۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختار کی قیادت میں امروز ڈی پی او آفس پاک پتن میں کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق کرائم میٹنگ میں ایس پی انویسٹیگیشن پاک پتن عائشہ بٹ اور ڈی ایس پی ضلع ہاسا نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر پاک پتن فیصل مختار نے کرائم میٹنگ میں تمام پولیس افسران کو ہدایت کی کہ اپنے اپنے سرکل کے تمام ایس ایچ اوز کو تلقین کریں کہ تھانہ جات میں آنے والے سائلین سے خوش اسلوبی سے پیش آئیں، منشیات فروشوں، ناجائز اسلحہ برادروں اور اشتہاری مجرمان کے خلاف کارروائیوں کو مزید مؤثر بنائیں، جرائم پیشہ عناصر اور ان کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں کریں، زیر تفتیش مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کریں اور کرائم کی روک تھام کے لیے پولیس گشت کے نظام کو بھی مزید مؤثر کریں۔ اب رخ کرتے ہیں شوج آباد کا۔ جامعہ فروقیہ شوج آباد کے تحت معروف رفاہی ادارہ الفروقیہ ٹرسٹ شوج آباد کے زیر انتظام مورخہ 11، 12، 13 اکتوبر بروز سوموار، منگل، بدھ الفروقیہ فری ہیلتھ کیئر سینٹر ملتان روڈ شوج آباد میں ماہر سرجنز پر مشتمل ڈاکٹروں کی ٹیم آنکھوں کا مفت معائنہ کرے گی۔ نیز موتیا کے فیکو کے ذریعے مفت آپریشن کیے جائیں گے، مفت لینس فراہم کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ جنوبی پنجاب کی پسماندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے وسیع پیمانے پر کیمپ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ کیمپ میں سینکڑوں آپریشن متوقع ہیں۔ الفروقیہ ٹرسٹ کے چیئرمین مولانا زبیر احمد صدیقی کے مطابق مریضوں کی ہر قسم کی راحت کا خیال رکھا جائے گا۔ خبر شامل کرتے ہیں شوج آباد سے۔ شوج آباد پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ملتان ریجن ترجمان پنجاب ہائی وے پیٹرولنگ پولیس ملتان ایس پی جی اور غیر قانونی سی این جی سلنڈرز استعمال کرنے والے ڈرائیور ان کے خلاف 80 مقدمات کا اندراج اور موبائل ایجوکیشن یونٹ پیٹرولنگ پولیس کی پرفارمنس رپورٹ گزشتہ ماہ ستمبر 2021 10 مرتبہ شوزو روڈ سیفٹی کیمپس 10 ورکشاپ سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ ایس پی پیٹرولنگ ہما نصیب کی ہدایت پر موبائل ایجوکیشن یونٹ نے گزشتہ ماہ کی پرفارمنس رپورٹ جاری کر دی، جس میں موبائل ایجوکیشن یونٹ ٹیم انچارج اے ایس ای جاوید اقبال عرابی نے آگاہی مہم کے دوران 59 تعلیمی اداروں، 202 پبلک پلیسز، 159 ٹیکسی رکشہ، بس اور ٹرک سٹینڈز، 150 کمرشل مارکیٹس، 42 مختلف دیہات، 52 ہسپتال اور دیہی مرکز صحت، 55 پیٹرول پمپس اور 37 بینکوں کا دورہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملتان ریجن کی مختلف شاہراہوں پر 400 سست رفتار گاڑیوں، ٹرالوں اور ٹریکٹر ٹرالی پر ریفلیکٹر سیکٹرز لگائے گئے۔ اس دوران 12,335 افراد میں روڈ سیفٹی، ٹریفک قوانین، کرونا وائرس، گرین ہائی ویز، ڈینگی اور ویلنگ کے نقصانات اور کم عمر ڈرائیورز کے موضوعات پر آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ پیٹرولنگ پولیس کی ہیلپ لائن 1124 کی ترویج کے لیے کیبل آپریٹرز کے ذریعے شعور بھی اجاگر کیا جائے گا۔ آکسفورڈ گرلز کالج کے اسٹاف و طالبات نے ٹیچرز ڈے کی آمد کے موقع پر یونیورسٹی آف سیالکوٹ کا مطالعاتی دورہ کیا۔ دورے کے دوران کلیم رضا ڈائریکٹر ایڈمیشن نے اسٹاف طالبات کو یونیورسٹی کے وی سی آفس، ایڈیٹوریم، لائبریری، کمپیوٹر لیب، سائنس لیب اور مختلف ڈپارٹمنٹس کا دورہ کروایا۔ اس موقع پر چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹر فیصل محمود نے کہا کہ ہم پرورش لوہے قلم کرتے ہیں، پاکستان کے ٹیچرز عظیم ہیں، ہم ٹیچرز کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سیالکوٹ یونیورسٹی میں 100 سے زائد پی ایچ ڈی ٹیچرز اور 400 سے زائد ایم فل اساتذہ اقبال کے شہینوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں۔ اس موقع پر طالبات نے ڈائریکٹر ریحان یونس، سابق اسسٹنٹ ڈائریکٹر کالجز ارشد بٹ سے بھی ملاقات کی۔ کالج وفد میں رضوان طاہر ایڈوکیٹ، مس طاہرہ خلیل، مس فرحانہ، مس فاریہ، مس عفیفہ نعمان، مس پینش، مس رضوانہ ایم اے انگلش کی طالبات شامل تھیں۔ احمد پور شرقیہ تحصیل رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری مختوم سید علی حسن گیلانی، عمر کھرل، علی رضا بادشاہ، محمد عاشق کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی کے خلاف وسیب میں احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف شہروں میں مظاہرے ہوں گے۔ یہ اعلان انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ تفصیلات کے مطابق مختوم سید علی حسن گیلانی نے اعلان کیا کہ حالیہ مہنگائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے غریب آدمی کی کمر توڑ دی ہے اور عوام میں حکومت کے خلاف شدید رد عمل پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 11 اکتوبر کو حالیہ مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ مزید ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ملک کو بلاول بھٹو ہی ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے دور میں بھرتی کیے گئے لوگوں کو بے روزگار کر کے 16,000 خاندانوں کا معاشی قتل کیا گیا۔ بلاول بھٹو نے مؤثر آواز بلند کی ہے اور ہم ان متاثرین کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔
ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اپوزیشن کو متحد ہونا چاہیے. موجودہ بحرانی کیفیت میں بلاول بھٹو کی لاؤڈ اور کلیئر آواز موجود ہے اور وہ ہر سطح پر عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں. عمران خان کے بہت سارے فیصلوں کا بوجھ براہ راست عوام کی کندھوں پر ہے. روپے کی قدر کم اور مہنگائی کی سطح بلند ہو رہی ہے. موجودہ حکمران پیٹرول، بجلی، گیس کے بلوں کے ذریعے ریونیو اکٹھا کر کے جان بوجھ کر ملک میں مہنگائی پیدا کر رہے ہیں. اس وقت عوام کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں آ کر پاکستان کے تمام بحرانوں کو نکالے گی. انشاءاللہ 11 اکتوبر کو اس نااہل حکومت کے خلاف الشمس چوک میں اچ شریف بھرپور احتجاج کریں گے اور حکومت کو آئینہ دکھائیں گے کہ عمران خان جو کنٹینر پہ ٹھہر کے تقاریر کرتا تھا وہ تقریریں یاد کرے. آج غریب لوگ مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس چکے ہیں. خدا کا خوف لے، مہنگائی کے خلاف بھی کوئی یو ٹرن لے. خبر شامل کرتے ہیں کبیر والا سے، جہاں کمسن بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی. زیادتی کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ اپنے ہی باپ نے 9 سالہ بچی کو ہوس کا نشانہ بنا ڈالا. کبیر والا تھانہ 12 میل کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں سوتیلے باپ نے بیٹی کے ساتھ زیادتی کی. بچی کی ماں کو خبر ہونے پر ظالم درندے نے 2 ماہ تک ایک کمرے میں بند رکھا اور مسلسل ماں اور بیٹی پر تشدد کرتا رہا. متاثرہ ماں اور بیٹی موقع ملنے پر جان چھڑا کر تھانے پہنچی تو پولیس نے کوئی داد رسی نہ کی. ڈی پی او خانیوال کی ہدایت پر متاثرہ کا مقدمہ درج ہوا، مگر علاقائی پولیس ملزمان کے ساتھ ساز باز تفتیشی آفیسر میڈیکل لیبارٹری کے لیے لاہور تو لے گئے مگر نہ میڈیکل کروایا، لیبارٹری کے گیٹ سے ہی واپس لے آئے، جس پر متاثرہ خاندان کا اعلی حکام سے انصاف کی اپیل ہے. مزید دیکھتے ہیں آن نیوز کے رپورٹر خواجہ سکلین کی اس رپورٹ میں. اپنی مما کو بتا کے فیر مار دوں گا اچھا، اس کا کیا نام ہے؟ اسلم. وہ کیا لگتا تھا آپ کا؟ میرا پاپا. کہندی ہے جھوٹ بول رہی ہوں نا کہ پیسے دے لے، میرے جھوٹ بول دی، میرے غریب بھی نہیں، کوئی نہیں سنتا. جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں کبیر والا کے علاقے تھانہ 12 میل کے قریب. یہاں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے. ظالم درندے ستیلے باپ نے 9 سالہ بچی کے ساتھ زبردستی زیادتی کی ہے. 2 ماہ مسلسل انہیں ماں بیٹی کو قید میں رکھا ہے. اس کے بعد جیسے ہی ماں بیٹی کو موقع ملا ہے تو وہ گھر سے باہر کر نکل آئی ہیں. تھانہ مقدمہ 12 میل میں درج ہو گیا ہے، لیکن ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ پولیس نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں اور کیوں وہ زیادتی کرتا رہا اتنا درندہ شخص. اس کے بارے میں حقائق تمام آپ کو دکھائیں گے، تو آپ کو لیے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. بتاؤ کون سا درندہ تھا، کون تھا جس کے ساتھ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ بتاؤ ذرا. اب کسی کو بتانا نہیں، اپنی مما کو بتا کے فیر مار دوں گا. اب 2 مہینے کے ہم لوگ بند کیے رکھے باہر آنے، لیکن نہ مما کی نہ نانی سے بات نہیں کرنے تھی. اس نے زیادتی کی ہے، اسے بند کرنے لگے، کمرے کے اندر بند کیے رکھے، اس نے آنے دیا ہمیں. جی میری بہن بتائیں، اس بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والا جو درندہ تھا وہ اس کا سکا باپ تھا، دوسرا باپ تھا؟ پہلا دوسری شادی کی تھی سی، اس کو طلاق دیتی، متریجا پیو سی اس جاستی کی تھی. تو اس میں نے بتایا نہ، ایک دفعہ کر لی، دوسری دفعہ بتاتا تو میں کہ میں نے چھوڑ کے نہیں آئے، مکان پہ اندر بند کر لیا کہ تم جاؤ گے تو پھیر ماراں گا. اچھا پھر ہن تسی کی چاہندے ہو؟ میں انصاف چاہنی، اللہ کا میں انصاف چاہنا ہے میری بچی کو. پولیس کی کہندی ہے تانوں؟ پولیس کہندی ہے جھوٹ بول رہی ہوں نا کہ پیسے دے لے، میرے جھوٹ بول دی، میرے غریب بھی نہیں، کوئی نہیں سنتا. میں لاہور گئی، میں لاہور تو واپس آ گئی، میری کو رپورٹ کسے نہیں بنائی. اچھا تانوں رپورٹ واسطے پولیس لے گئی نال لاہور؟ لے کے گئی، آ کے چل رپورٹ بناواں گے. اتنے گئی تو جا کے لتھی جا کے نہیں آ کے رپورٹ نہیں بنتی. 2 مہینے لنگ گئے. کون کہندا تسی اندر گئے سی لاہور؟ اندر گئے لاہور تو سیٹ لتھے تو نے کیا پولیس نے کیا کہ نہیں ہے کہ رپورٹ نہیں بنتی. 2 مہینے لیٹ ہو گئے. کنے تانوں کیا ہے؟ پولیس والے. کیڑے پولیس والے؟ شوکت علی. اچھا 12 میل پولیس والا جڑا تفتیشی افسر تہاڈا 12 میل والا ہے، انہیں کیا ہے یا تانوں اندر لیبارٹری والے نے کیا؟ نہیں 12 میل والا. اچھا انہیں کی کیا تانوں؟ انہیں گیٹ لیٹ ختم ہوگی، ہن رپورٹ نہیں بنتی. جی جیسا کہ آپ نے سنا، بہت افسوس ہوا، دکھ بھری کہانی. غریب لوگ اور پہلی جگہ شادی ہوئی، وہاں سے ڈیورس ہوئی، دوسری جگہ شادی ہوئی، وہاں ستیلے باپ نے بچی کے ساتھ زیادتی کی، مسلسل 2 مہینے انہیں قید میں رکھا
اور तमाम हक़ाइक़ जाने, तमाम हक़ाइक़ आपको भी दिखाए। अब जहाँ हमारे वज़ीर आज़म साहब मदीना की रियासत की बात करते थे और तहफ़्फ़ुज़ की बात किया करते थे, वहीं हमारे मुहाफ़िज़ मुल्ज़िमान के साथ साज़बाज़ हैं और इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, बेचारे बेरोज़गार हैं, गरीब लोग हैं। इन्होंने बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए, एक वाइन जो है वो किराए पे की, 12,000 रुपये लगा कर लाहौर गए लेबार्ट्री के लिए। तो वहाँ तफ्तीशी अफसर जो साथ गए थे उन्होंने लेबार्ट्री नहीं की, उल्टा बल्कि इनको कहा है कि आपका टाइम जो है ज़्यादा हो गया, लेबार्ट्री अब इनकी नहीं हो सकती। इनका मुतालबा ये है कि हमारी जो है DNA टेस्ट की रिपोर्ट दोबारा की जाए और मुल्ज़िम के खिलाफ जो है दोबारा से कार्रवाई की जाए। कैमरामैन वलीद शेख के साथ ख्वाजा सिकलैन, ऑन न्यूज़ पंजाब। दड़ो शहर और गिरदोनवा में मुंशियात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। क्या खवातीन और बच्चों ने एहतजाज करते हुए धरना दे दिया। दड़ो शहर और गिरदोनवा में मुंशियात और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ शहरी और देहात के लोगों ने एहतजाज करके धरना दे दिया। एहतजाजी धरने में खवातीन और बच्चों समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। एहतजाज करने वालों का कहना था, हमारा नौजवान नस्ल नशे का आदी बन रहा है। हेरोइन, चर्स, आइस और दीगर मुंशियात का कारोबार अरूज पर चल रहा है, जिस पर हमारी नौजवान नस्ल नशे की आदी बन गई है, मगर पुलिस इंतजामिया इस हवाले से बिल्कुल खामोश नजर आती है। हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, जिससे हम परेशान होकर आज एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। एहतजाज करने वालों का ये मुतालबा है कि पुलिस इंतजामिया मुंशियात फरोशों और दीगर समाजी बुराइयों के खिलाफ मुंशियात अड्डों पर कार्रवाई करके इसको बंद करवाया जाए, ताकि हमारे नौजवान नस्ल को नशे की आदी होने से बचाया जा सके। अब रुख करते हैं डडियाल आजाद कश्मीर का। तहसील डडियाल की बहारी रोड, जो कि पहले ही टूट फूट का शिकार थी, हालिया होने वाली बारिशों ने रही सही कसर भी निकाल दी। सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी। मजीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ वकास लासानी की इस रिपोर्ट में। जी वकास, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, तहसील डडियाला में महमूदाबाद, बिहारी और सेंसर को मिलाने वाली सड़क खंडरात का मंजर पेश करने लगी। रोड पर बड़े बड़े शगाफ बन गए, आवाम परेशान हाल हो गई। हालिया होने वाली बारिशों ने भी तहसील डडियाल बिहारी रोड का सत्यानाश कर दिया। लोगों के लाखों रुपए की गाड़ियां तबाह बर्बाद होकर रह गईं। मुसाफिर मुतबादल रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर। चंद मिनटों का सफ़र घंटों में तय होने लगा। स्कूल जाने वाले तलबा और तलबात समेत मरीज़ों को भी हस्पताल में आने के लिए दुश्वारी का सामना। आवाम का कहना है कि मुतलका रोड की मंजूरी के बावजूद अभी तक रोड का काम मुकम्मल न होना एक सवालिया निशान है। अवाम इलाका का वज़ीर मवासलात व तामीरात आमा आज़ाद जम्मू कश्मीर अज़हर सादिक और आला हिकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन उस्मान खान के साथ वकास लासानी, डडियाल, आज़ाद कश्मीर। खबर शामिल करते हैं कोटरी, जहां पर डिप्टी कमिश्नर जामशोरों की ऑफिस के बिल्कुल बराबर के इलाके गरीबाबाद का मेन रोड टूट फूट और सफाई न होने पर नदी नालों का मंजर पेश कर रहा है। तफसीलात के मुताबिक डीसी ऑफिस के बराबर के इलाके, जो कि डीसी ऑफिस के बिल्कुल बराबर हैं, वहां पर ना तो सफाई की जाती है और ना ही कोई तरक्याती काम होता है। इलाका मकीनों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डीसी जामशोरों हमारे इलाके में कोई भी तरक्याती काम नहीं करवा रहे, ना ही महंगाई पर कंट्रोल किया जा रहा है। मजीद क्या कहना है, देखते हैं हमारे ऑन न्यूज के रिपोर्टर अली इजाज से। जी इजाज, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, इस टाइम पे मैं मौजूद हूँ डीसी जामशोरों के बिल्कुल ऑफिस के बिल्कुल बाहर, जहाँ पे कचरे और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ पे कोई भी सफाई नहीं है, रोड टूटे फूटे पड़े हुए हैं। इसके बारे में आवाम का क्या कहना है, आइए उनसे सुनते हैं। ट्रैफिक आहिनि रोड रस्ते ते नज़र विधी, जंहिं रस्ते ते असांजे आला अमलदारनि जो ऐं इलाइक़े जे MP MLA या जेके बि आला उहिदेदार आहिनि, जीअं ॾिठो वञे त ही रोड जामशोर ज़िले जे DC जे बिल्कुलु ऑफिस जे बिल्कुलु क़रीब आहे। जेको DC ऑफिस जे भरिसां लंघ थिए थो, उहो रस्तो अहिड़ो त ख़राबु आहे जीअं ॿाराड़ीअ जी बनियुनि में खेड़ी जंहिंखे चइजे, जीअं बनियूं हूंदियूं, बनीअ मां जीअं रस्तो हुजे, उन में असां इंतिहाई परेशान आहियूं। काफ़ी अरसे खां ही रोड ठहण जो नालो नथो वठे। जेको कागज़ी तौर ते त ॿुधो थो वञे त ही मंज़ूर थियल आहे ऐं कागज़ी तौर ते ठहियल आहे। तव्हां कंहिंखे अपील करणु चाहींदो हिन बारे में एक्शन खणे? खां पहिरियां त असां जेको जंहिंजी हिते ऑफिस आहे DC साहब, उनखे चवंदासीं त उहो कुझु हिन ते एक्शन खणे। जे उहो नथो
खणे उनखे शायदि नज़र नथो अचे हुनजी ऑफिस आहे हुनजो पंहिंजो हिन रोड रस्ते सां गुज़र आहे ॿ टे लख रुपए जूं गाॾियूं रोड ते तबाह थी वञनि असां जेको बि कमायूं था सो गाॾियुनि में पुराऊं हिन सड़क जी ॿियार खां बसी ताणी रोडनि जी हालत अहिड़ी लॻी पई आहे त पसीजर जेको चङो भलो आहे अस्पताल ताणी पहुचे थो हुनखे कॾहिं पेट सूर आहे माई हलंदे हलंदे डिलीवरी आहे अस्पताल ताणी वीचारी मरी थी वञे जॾहिं डीसीओ हिते अचे थो कोटड़ी में या फाटक ते अचे थो उन टाइम ते बल्दिया वारा हैदराबाद खां कोटड़ी खां जामशोरे खां पूरे इलाइक़े में अचनि था हिते सफ़ाई कनि थियूं रोड चमके थो 6 ॾींहं ते डीसीओ नथो अचे हिन इलाइक़े में बाक़ी इहो गंद किचिरो ॾिसो लेनियूं भॻल आहिनि इहो गटरनि जो पाणी बि घरनि ॾे थो वञे 20 साल खां 30 साल खां असां हिते रहूं था असांखे का बि अॼु ॾींहुं ताणी सहूलियत न मिली पर काफ़ी अरसे खां वठी ही सड़क जेको सो विरहाइण लॻी पई आहे हिते त का मरम्मत वग़ैरह न थी आहे ऐं इन गॾु बिहार वारो जेको रोड आहे जेको बस्ती वञे थो इहो बि काफ़ी अरसे खां जेको सो न ठहियो आहे पीपी जे दौर 5 साल पीपी हुकूमत कई लेकिन रोड न ठहियो वरी हाणे इमरान ख़ान जी हुकूमत आई आहे त बि रोड जेको सो तव्हांजे साम्हूं आहिनि कचिरे जा ढेर लॻा पिया आहिनि कचिरे जी को माना सफ़ाई जो निज़ाम न आहे बराए महिरबानी तव्हांखे असां अपील था कयूं CM साहब खे प्राइम मिनिस्टर खे तमामु जेके बि वज़ीर आहिनि इतलात सभिनी खे असांखे गुज़ारिश आहे त अब रुख करते हैं कश्मोर का। कश्मोर में चकसूरी गांव शेरचान मजारी के रिहायशियों का बासर जमींदार के खिलाफ एहतजाज मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि राना इरफान पुलिस की मिली भगत से हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। कश्मोर में चकसूरी गांव शेरचान मजारी के रिहायशियों का बासर जमींदार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि राना इरफान पुलिस की मिली भगत से हमारी जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं। बासर जमींदार राना इरफान के कहने पर मजारी गोट की पुलिस हमें और हमारे बच्चों को बिला वजह तंग कर रही है। हमारे तमाम जमीनें रजिस्टर और खाते वाली जमीनें हैं। बासर जमींदार हम पर झूठे मुकदमा दर्ज करवाकर जमीनों पर कब्जा करना चाहता है। अदालती फैसले के बावजूद हमें इंसाफ फ्राहम नहीं किया जा रहा। पंजाब और IG हुकूमत वक्त फिलफौर नोटिस ले शफाफ इंक्वायरी करके इंसाफ फ्राहम करें। कोटअद्दू से खबर शामिल करते हैं शहबाज खान। कोटअद्दू के नवाही इलाके थाना दायरा दीन पनाह की हदूद में मासूम बच्चियों से ज्यादती के वाकयात में इजाफा। घर के बाहर खेलती बच्ची को करीबी रिश्तेदार 17 साला उबाश जुबैर ने 5 साला सानिया जो कि प्रेप जमात की तालिब इल्म है को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस थाना दायरा दीन पनाह मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 10 दिन गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार न किया। मासूम बच्ची के वुरसा का एहतजाज। मुलजिम की तरफ से बच्ची को वुरसा को कत्ल की धमकियां दी जाने लगी। बच्ची के वुरसा को वजीर आला पंजाब IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा है। खबर शामिल करते हैं कोटरी से, जहां पर साइट एरिया के काफी इलाकों में पानी मयसर नहीं। पीने के पानी के लिए आवाम टैंकरों से पानी डलवाती है। टैंकर माफिया के रेट DC जामशोरो मुकर्रर DC करता है, मगर जामशोरो के अहकामात को ताकतवर टैंकर माफिया नजरअंदाज कर रहा है। आवाम को महंगे दामों पानी दिया जा रहा है, जबकि अवामी नुमाइंदे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। मजीद क्या कहना है जानते हैं अली इजाज से। सुना था कि ये जो आप टैंकर वालों को भराई करके दे रहे हैं, आप इनसे क्या चार्जेस लेते हैं फी टैंकर? 200 रुपये बढ़ेगी 18 से 200 रुपये। ओके, बढ़ेगी 200 रुपये। इस टेम्पे में मौजूद हूँ KB फीडर कोटरी पर, जहाँ पर टैंकर माफिया की भर्ती जारी है और टैंकर माफिया की तरफ से आवाम को दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से 800 रुपये रेट मुकर्रर किया गया है, मगर यहाँ पर जो जहाँ पे आए उसको उसी तरह लूटा जा रहा है। 2000 से 3000 रुपये में टैंकर माफिया यहाँ पे टैंकर बेच रही है। इंतज़ामिया से हमने बात की है, इंतज़ामिया का कहना है कि हम लोग टैंकर माफिया को कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। लिहाजा हमारा SSP जामशोरो और DC जामशोरो से मुतालबा है कि रेट मुकर्रर रेट पे आवाम को टैंकर माफिया से पानी दिलवाया जाए। कैमरामैन सरफराज अली खासकेली के साथ एजाज अली डेतो, ऑन न्यूज़ कोटरी। अब रुख करते हैं पत्तोकी का। पत्तोकी मुस्लिम लीग नून के साबिक जिले चेयरमैन राना सिकंदर हयात ने मोहम्मद वकास असगर म्यू को यूथ विंग मुस्लिम लीग नून पत्तोकी का नायब सदर मुंतखब कर दिया। हर मुमकिन कोशिश होगी अपने इलाके के नौजवानों की आवाज बनो। मोहम्मद वकास असगर म्यू की मीडिया से गुफ्तगू। तफसीलात के मुताबिक पत्तोकी मुस्लिम लीग नून के साबिक जिले चेयरमैन राना सिकंदर हयात ने मोहम्मद वकास असगर को यूथ विंग मुस्लिम लीग नून पत्तोकी का नायब सदर मुंतखब कर दिया।
इस मौके पर वकास का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मेरे लिए फख्र की बात है, मैं अपने इलाके के जवानों की आवाज़ बनूंगा। पीटीआई की हुकूमत ने महंगाई के सिवा गरीब आवाम को कुछ नहीं दिया। गरीब लोग 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं। आए रोज पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा होना ये मौजूदा हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा आवाम की खिदमत की है और इंशाल्लाह 2023 के इलेक्शन में हर तरफ शेर धाड़ेगा। शाहीन इकबाल ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक खबर शामिल करते हैं अड्डा परमिट लोधरा से। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग के नतीजे में 2 डाकू हलाक और पुलिस ने 2 डाकू गिरफ्तार कर लिए। एक डाकू भाग गया। डाकुओं की फायरिंग की वजह से 3 आम शहरी जख्मी हो गए और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। 1122 रेस्क्यू मौके पर आकर 3 आम शहरी और 2 पुलिस वालों को रेस्क्यू ने उठाकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शाहीन इकबाल ब्यूरो चीफ जिला बहावलनगर से आने वाली खबर का इंतजार कर रहे हैं। ऑन न्यूज हर जगह मौजूद है। अब रुख करते हैं गोचरा का। गोचरा आयरन स्टोर पर डकैती के बैनुल-ज़िलई रिकॉर्ड याफ्ता डकैत गिरफ्तार। इलाका थाना सिटी गोचरा में आयरन स्टोर पर वारदात के दौरान मालिक दुकान को जख्मी करने वाले दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिस पर मुकदमा थाना सिटी गोचरा में दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान की शनाख्त मंजूर वल्द नूर मोहम्मद कौम दिलो सकना चक नंबर 488 गाफे तहसील तांदलियांवाला और दूसरे मुल्जिम की शनाख्त फयाज उर्फ छल्ला वल्द बाहलिक कौम वहनी वाल सकना चक नंबर 353 गाफे तहसील तांदलियांवाला के नामों से हुई। मुल्जिमान का साबिक रिकॉर्ड चेक करने पर एक मुल्जिम मंजूर जिला फैसलाबाद के थाना जात मरीदवाला मामू कांजनगढ़ सिविल लाइन और साहिवाल के थाना जात फरीद टाउन बहादुर शाह और टोबा टेक सिंह के थाना सिटी गोजरा के डकैती दौरान डकैती जख्मी राहजनी। याद रहे कि गुज़श्ता रोज मुल्जिमान ने गोजरा आयरन स्टोर समंदरी रोड गोजरा पर वारदात की। दुराने मज़ाहमत मालिक दुकान को जख्मी कर दिया। इसी दौरान SHO थाना सिटी गोजरा इजाज हुसैन SI और उनकी टीम ने DSP गोजरा मियां वकार अहमद की सरबराही में बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से वक़ूए में इस्तेमाल होने वाले पिस्टल और कलशंकोफ गोलियां बरामद हो चुकी हैं। मुल्जिम फयाज ने दौरान इन्वेस्टिगेशन काफी इंकशाफात किए हैं कि इसने अपने दीगर साथियों के हमरा जिला टोबा खास को गोशरा में डकैती राहजनी की मुतअद्दिद संगीन वारदातें की हैं। मुल्जिम फयाज के इंकशाफात पर उसके साथियों की मजीद गिरफ्तारियां की जाएंगी और अवाम का लूटा हुआ माल बरामद किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान ज़ेशान जावेद ने सब्जी मंडी सरवर वाली का अचानक दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील अहमद मेमन और दीगर हमरा थे। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद ने सब्जी मंडी सरवर वाली में बारिश से बनने वाली कीचड़ की सफाई के अहकाम जारी किए। असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील अहमद, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अली अब्बास और दीगर मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ज़ेशान जावेद ने शिकायत सेल का भी दौरा किया। उन्होंने मार्केट कमेटी की तरफ से तैयार आगाही पम्फलेट भी देखे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सब्जी मंडी में किसी को बगैर नीलामी अशिया बेचने की इजाजत नहीं होगी। मार्केट कमेटी रोजाना की बुनियाद पर फल और सब्जियों के नरख का तयन करे। फल और सब्जियों की नीलामी के अमल की मॉनिटरिंग की जाएगी। अब रुख करते हैं सियालकोट का। सियालकोट पुलिस ने अंधे कत्ल में मुलव्विस 3 सफा कातलों को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुल्जिमान शरीफ शहरी की बकरियां छीनकर मज़ाहमत पर कत्ल करके फरार हो गए। तर्जमाने पुलिस के मुताबिक सियालकोट कैंट के इलाके मोजा धोल के करीब खेतों से एक शख्स की नाश मिली, जिसे नामालूम अफराद ने फायर करके कत्ल किया था। DPO सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी ने SDPO सिटी राना नदीम तारी की ज़ेरे निगरानी मुकदमा कत्ल की तफ्तीश के लिए बनाए गए होमी साइड यूनिवर्सिटी सर्कल के इंचार्ज इरफान अशरफ और SHO कैंट अफजाल मुमताज पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज किया और जदीद साइंटिफिक तरीके से अंधे कत्ल की तफ्तीश शुरू की और तफ्तीश के दायरा कार को वसी करते हुए जियो फेंसिंग की मदद से 200 मशकूक अफराद के मोबाइल का डाटा हासिल किया और तफ्तीश का आगाज करते हुए 3 मुल्जिमान कासम, हसन और शान अली को गिरफ्तार किया, जिन्होंने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उन्होंने चांद नामी मुल्जिम के हमरा अब्दुल हमीद से बकरे छीनने की कोशिश की और मुजामत पर उसे कत्ल कर दिया। पुलिस ने तीनों मुल्जिमान अब्दुल हमीद को कत्ल करने के इल्जाम में शनाख्त परेड करवाने के लिए जेल भिजवा दिया, जबकि फरार होने वाले मुल्जिम चांद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। मकतूल अब्दुल हमीद के भाई मदई मुकदमा मोहम्मद नवाज ने मीडिया को बताया, पुलिस ने बहुत मेहनत से इसके भाई के कातिलों को गिरफ्तार किया है। मेरा भाई अब्दुल हमीद बकरे चरा रहा सी ते चोर डकैत आए ने जिहड़े कि उन्हां कोलों बकरे चुराने की कोशिश की है। उन्हां को मज़ामत की है। मज़ामत के दौरान इन्हां फायर मार के उन्होंने कत्ल कर दिता।
आला हज़रत मस्जिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के मौके पर महफिल का इनकाद किया गया, जबकि महफिल के शुरका और अहले इलाका में वसी लंगर भी तकसीम किया गया। रीजनल ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक महफिल का इनकाद सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सरूवत एजाज कादरी की हिदायत पर जिले सदर जहांगीर कादरी की क़यादत में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और दावत इस्लामी सियालकोट के ज़ेर एहतमाम नया मियानापुरा में मुनक्किद की गई। इस मौके पर बाबा कदीर, हाजी इलियास, हाजी शबीर खोखर, हाजी दरवेश, सुमेर कादरी, जुनेद कादरी, जुबैर कादरी, हाफिज आजम कादरी समेत मौजूदीन इलाका और पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट और दावत इस्लामी के अहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। सालाना उर्स मुबारक के मौके पर मुनक्किद महफिल में हाफिज अतीक कादरी ने तलावत कुरान पाक करके महफिल के शुरका के दिलों को मुनव्वर किया, जबकि महफिल में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर अपनी अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश किया। इस मौके पर ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए, जबकि आला हजरत मस्जिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की मुनक्किद महफिल में मुल्क व कौम की सलामी और इस्तेहकाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। महफिल के इख्तिताम पर महफिल के शुरका और अहले इलाका में वसी लंगर भी तकसीम किया गया। जामिया मस्जिद बीना जेल रोड पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सलीम शेख कादरी रहमतुल्लाह अलैह की सालाना बरसी समेत उनकी अहलिया मरहुमा दोनों मरहुमैन के इसाले सवाब के लिए महफिल और दुआ का एहतमाम किया गया, जबकि इस मौके पर जिले सदर जहांगीर कादरी, कारी शम्स, मलिक आरिफ, मलिक आसिफ अवान, बाबा कदीर, अली रजा कादरी, सुमेर कादरी, जुनेद कादरी और जुबैर कादरी ने भी शिरकत की और महफिल के शुरका ने मरहुमा के बुलंदरजात और मगफिरत के लिए खसूसी दुआ भी की। अहमदपुर शर्किया अजमल जेबल की रिपोर्ट से हमजा शहबाज की तहसील अहमदपुर शर्किया का नवाही इलाका दो कोट आमद नॉन लीगी MPA मलिक खालिद वारान मलिक नवीद वारान ने इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज ने मलिक खालिद वारान के वालिद मरहूम मलिक कादिर बख्श और मरहूम अहलिया मलिक खालिद वारान की मगफिरत इसाले सवाब की दुआ मांगी। MPA मलिक खालिद ने कहा कि मुझे मियां नवाज शरीफ ने 33 करोड़ की रोड दी और अरब के मंसूबे जारी किए। हमदा शहबाज शरीफ ने कहा कि इंशाअल्लाह 2023 का इलेक्शन जीतेंगे। माँ बाप सरमाया होते हैं। मैं आपके वालिद की वफात पर नहीं आ सका क्योंकि मैं जेल में था। इसी दौरान अहमद खान चौधरी काशिफ MPA चिश्तियां, डॉक्टर तारिक MPA सरगोदा, साबिक सेनेटर चौधरी साउद मजीद, साबिक वफाकी वजीर अवैस लोगारी, अता तारर इनके हमरा मौजूद थे। आपके और आपके बुजुर्गों के इंतहाई मशगूल हैं इस इलाके के लोग कि जिस रोड से आप आए हैं ये आपके वालिद गिरामी और आप और खुसूसन तारर साहब और मियां साहब ने ये 33 करोड़ की रोड मेरे वालिद बुजुर्गान को दी थी। ये हल्का PP 255 यहाँ पे लोग बैठे हैं। आपके बुजुर्गों ने कितना इज्जत बख्शी मेरे वालिद साहब को, कम अज कम अरब के मंसूबे आपके बुजुर्गों ने और आपने दिए। हम भाई फुटेज बनाऊँ या के अहलियान झूठ बोल के हल्का 255 के तमाम लोगों की तरफ से आपके खानदान के और आपके इंतहाई मशहूर हैं। नहीं भाई वो तो रिकॉर्ड करके फिर अल्लाह ताला आपको भी इज्जत से नवाजे और हमें कंप्लीट होगा तो इंशाअल्लाह मियां नवाज शरीफ मियां शहबाज शरीफ की क़यादत में इस पाकिस्तान की दोबारा खिदमत करेंगे और अल्लाह ने चाहा 2023 के इलेक्शन को हम जीतेंगे इंशाअल्लाह। आमीन अल्लाहु आमीन 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 कहा कि अल्लाह ताला वो ऐसा मंजूर था, एक वक्त एक लम्हा जो है उस रब के फैसले के बगैर आगे नहीं बढ़ता। आपके वालिद के जाने का भी एक वक्त मुकर्रर था, मेरे भी रिहा होने का एक वक्त मुकर्रर था। और मैं ये भी कहूँगा कि इज़्ज़त जो है वो उस रब के हाथ में, वो जिसे चाहे इज़्ज़त बख्शता है। तो यकीनन अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त अता फरमाई है, आपके वालिद को इज़्ज़त अता फरमाई है। खबर शामिल करते हैं कोटरी से, जहां पर पानी ना मिलने की वजह से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है।
आज सिंध तरक्की पसंद पार्टी ने कोटरी जामशोरो और हेड ब्रिज पर एहतजाजी धरना दिया, जिसमें लेडीज, मर्द और बच्चों ने भरपूर शिरकत की। अवाम का कहना है कि हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा। इलाके के डीसी जामशोरो से मुतालबा किया गया कि साइट एरिया के इलाकों में पानी दिया जाए और टैंकर माफिया का सिस्टम खत्म करवाया जाए। हम लोग दरियाए सिंध के किनारे पर आबादी से पूरा सिंध यहाँ से पानी पीता है, मगर हम लोग प्यासे हैं और गंदा पानी पीने में मजबूर हैं। मजीद जानते हैं एजाज अली की इस रिपोर्ट में। किस मकसद के लिए दिया है? मैं मुस्लिम टाउन एक्शन कमेटी का मेंबर हूँ और हमने इस धरने की हिमायत की थी एसटीपी के, और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पानी चाहिए, ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। और हमने 2 बार धरना दिया है, हमारा एक शहीद हुआ है, और हम चाहते हैं हमारे मुस्लिम टाउन को सहूलतें पानी की लाजमी दी जाए, और जो ना LSD और एक्सीएन है उसको हटाया जाए, और हमारी पूरी लाइन की इंक्रोचमेंट की जाए, जिससे हमारी आवाम को पानी मिले। शुक्रिया। डीसी दहशतगर्द माण्हू पंहिंजा प्यार वेठा जेको बदमाशी गुंडा टैक्स हथा वठी करे पाणी बंदि करे टैंकर माफिया सां मिलियल आहिनि। अॼु असांजी नियाणियूं नंग असांजा रोडनि ते वेठा आहिनि। हे गैरतमंद नियाणियूं, असां जेसिताईं शीशीअ में असांखे साह हूंदो असांजा नियाणियूं वेठा हूंदा, असां वेठा हूंदासीं, असांखे पाणी खपे। एॾी ज़ुल्म एॾी जेकॾहिं हुन में साह हूंदो, होश हूंदो, डीसी सां ॻाल्हियूं कंदो। पानी ना है तव्हां वटि? असांखे पाणी खपे, पाणी लाइननि ते ज़रिए खपे। ही त टैंकर माफिया सपोर्ट करणु डीसी MC कोराड़ी VN साल खां वठी पाणी जी नेमत खां महरूम आहे। असांखे हथ वठी तव्हां छाजे लाइ धरणो आहे, कहिड़े मक़सद लाइ आयो आहे? डीसी चयो त टैंकर 3500 रुपए थी वियो, 13 जी जगह ते 1300 रुपए थी वियो, 3500 रुपए थी वियो आहे। आखिरकार छो पुलिस घंटा शाम भी जने रात भी जने रात भी रही ॾाढी पर डीसी का गलाई। अब रुख करते हैं खैरपुर नाथन शाह का। खैरपुर नाथन शाह थाना कस्बों की हदूद में पैसे न देने पर मुबैना कत्ल होने वाले मोहम्मद हसन जमाली का वुरसा का कक्कड़ प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहिरा और धरना। मुजाहिरीन का मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। अली असगर, मोहम्मद आलम, महबूब अली मारो जमाली, मोहम्मद मुत्तल जमाली और दीगल ने कक्कड़ प्रेस क्लब पहुंचकर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज करते हुए कहा कि चंद रोज कबल हमारे लोग घर के इस्तेमाल के लिए पत्थर उठाकर ला रहे थे, तो रास्ते में लुगारी कबीली के बासर अफराद असले के साथ खड़े थे। जहां लुगारी कबीली के लोगों ने कहा कि हमारे गांव से गुजरने के इवज पैसे दो तो ही तुम लोगों को यहां से गुजरने दिया जाएगा। हमारे लोगों की जानिब से इनको पैसे न देने पर उन्होंने मोहम्मद हसन जमाली को मौके पर ही कत्ल करके 7 लोगों को जख्मी कर दिया। उनका मजीद कहना था कि 4 घंटों तक लुगारी कबीली के लोगों ने हमारे एक शख्स को कत्ल और 7 अफराद को जख्मी करके अपने पास यरगमाल बना रखा है, जिसके बाद इत्तला पर डीएसपी खैरपुर नाथन शाह ने जाए वकुआ पर पहुंचकर फोती की लाश और तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जमाली बरादरी के लोगों का कहना था कि PPMPA संजीला लुगारी जात परस्ती करते हैं, लुगारी बरादरी के सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से पुलिस भी कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। उन्होंने वजीर आला सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद और दीगर आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि मामले का नोटिस लेकर वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को वरी तौर गिरफ्तार करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। अब रुख करते हैं तरंडा मोहम्मद पनाह का। तरंडा मोहम्मद पनाह कब्जा माफिया तरंडा मोहम्मद पनाह में बेलगाम आए रोज सरकारी जमीनों पर कब्जा होने लगा, इंतजामिया बेबस हो गई। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के उस्ताजा और तलबा कब्जा माफिया के खिलाफ सरापाए एहतजाज हैं। सैकड़ों तलबा कब्जा माफिया के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रमजान नामी एडवोकेट ने स्कूल के 17 मरले रकबे पर कब्जा कर लिया। कब्जा माफिया से सरकारी स्कूल का रकबा वगुजार करवाया जाए, तालबात का ये मुतालबा है। रमजान नामी एडवोकेट के खिलाफ फौरी पर्चा दर्ज किया जाए और मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सड़कों पर आए हुए हैं, इस वक्त थाने में मौजूद हैं, क्या मुतालबात हैं आपको, किस लिए ये एहतजाज किया? असल में ऐसा है कि हमारी एक इमारत थी, मेरा नाम दुर मोहम्मद खान है, मैं स्कूल तरंडा मोहम्मद पनाह में असिस्ट हूँ। हमारी इमारत थी जो तकरीबन 40 साल से गवर्नमेंट हाई स्कूल को तफवीज़ थी, गवर्नमेंट ने बना के दी थी। दूर दराज के आने वाले असातिज़ा के लिए एक हॉस्टल था।
تو इमारत के हवाले से ये है कि कभी जो फ्लड रिलीफ कैंप लगते हैं या बाकी चीज़ें जो पोलियो के मुहिमात होते हैं, उस हवाले से भी जो है ना वो इमारत इस्तेमाल में आती रही है। तो इस इमारत के ऊपर ना कब्ज़ा माफिया का काफ़ी अरसे से जो है ना वो नज़र थी। तो एक चपरासी वहाँ पे हमने मुतय्यन कर रखा था, उस चपरासी ने अपना मकान लिया, तो उसने जो है ना हमें चाबियाँ जूँ ही वापस की, तो उसी रात जो है रमज़ान खान एडवोकेट ने 20-30 गुंडों के साथ मिलकर रात की तारीकी में, और वो भी उसने देखा कि छुट्टी का दिन है, सेकंड डे जो है ना वो असातिज़ा नहीं होंगे, तलबा नहीं होंगे, यानी ये आप देख लें कि संडे नाइट जो होती है, इतवार की रात, उस रात उसने कब्ज़ा कर लिया उसके ऊपर। फिर मेन गेट उसका बंद करके अपना, उसका घर पास है, वहाँ से दीवार तोड़कर दरवाज़ा बनाया, ईंटें ले आया, यानी रातों रात उसने जो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? जी मैं बताता हूँ आपको, ऐसा है कि हमने कल ही जो है ना, बेशक छुट्टी का दिन था, तमाम असातिज़ा अपने घरों से तशरीफ़ लाए, हेड मास्टर साहब लियाकतपुर से आते वो भी आ गए, उन्होंने जो है ना 15 पे कॉल की। सबसे पहले तो पुलिस ने ना 15 पे कॉल करने के नतीजे में रिस्पांस के तौर पर एक ड्राइवर को भेज दिया। उसके बाद कुछ पुलिस वाले आए, वो असातिज़ा से उलझते रहे, यानी बहस करते रहे। मेरे साथ उलझे। हाँ ये मौजूद है अपना है, तो वो उनकी फेवर में बोलने लगे, ऐसा हिसाब थे नाल साथ कुछ उसके क्या नाम था, सलीम साहब। अच्छा, फिर एक ये हमसाया है उस स्कूल का, इसने इसके भाई ने थोड़ी सी बताया जी सर ये हॉस्टल है, हम जानते हैं इसको, तो उसे भी दो को क्या इसके भाई को। जी आप बताएं क्या मामला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्ज़ से जो 100 साल को कब्जा है गवर्नमेंट स्कूल का, और गवर्नमेंट स्कूल के बाल इंदे विच पढ़दे ए रमज़ान खान साहब वकील हैं, वो अपने सरसूख सियासी सरसूख की वजह करते इलाके को यरगमाल करते, कोई हमसाया भी उन्होंने खिलाफ नहीं गाल की थी। ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, बाल उनके पढ़ते आनते वाला जरा ना उन्हें राती रात 10 बजे तकरीबन 10 बजे तकरीब उन्हें रात तक गेट बढ़ाते, एबे गेट दगू इंटे नाल दीवारां देते ता वाला वो अपना कब्जा कर गए। अब रुख करते हैं सहवन शरीफ का। सहवन शरीफ के शेख मोहल्ला में डकैती वारदात, डाकुओं ने असले के जोर पर घर वालों को यरगमाल बनाकर सोना और नकद रकम लूट ली। तफसीलात के मुताबिक सहवन शरीफ राज शेख मोहल्ला में 3 बजे के करीब डाकुओं ने घर में घुसकर असले के जोर पर शिराज अहमद वल्द मोहम्मद सदीक शेख को 1 घंटा यरगमाल बनाकर 1 अदद सोने का सेट और 50,000 नकद कैश लूटकर फरार हो गए। घर वालों का आला इंतजामिया से अपील करते हुए कहा कि हमारा लूटा हुआ सामान वापस करके हमें इंसाफ दिलाएं। दूसरी जानिब 15 के इंचार्ज मंसूर दिल की निगरानी में पुलिस टीम ने डाकुओं का पीछा कर रहे हैं। मालूम हुआ कि 5 डाकू में से 3 को पकड़ लिया गया, बाकी 2 डाकुओं को पकड़ने के लिए लक्की शाह के कच्चे के इलाके पुलिस का ऑपरेशन जारी है। रात तकरीबन 2:45 बजे खां बाद में मां पंहिंजे कमरे में सुतो पियो हुउमि त पंहिंजे आस पास के माण्हुनि जी मौजूदगी खे महसूसु कयो, ऐं हुन खां पोइ मुंहिंजे जागण ते उन्हनि माण्हुनि यरगमाल बणायो असांखे, ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो यानी असांजे घर जो जेको सॼो सामान वग़ैरह हो उनखे खोलणु लॻा, ॾिसणु लॻा। उन खां पोइ असांखे तकरीबन कलाकु यरगमाल करे ऐं घर मां असांजे हिकिड़ो सोनो सेट ऐं उन खां पोइ 50,000 नक़द ही चोरी करे जेको आहे सो खणी विया आहिनि। सो मुंहिंजी इहा ई जेका आहे सा रिक्वेस्ट आहे त इन्हनि खे जल्द खां जल्द लोहारनि खे जेको आहे सो पंहिंजे जेके कैफ़े किरदार ताईं पहुचायो वञे, उनखे सज़ा ॾिनी वञे त ही केरु आहिनि जेके यानी शहर जे अमन ऐं सुकून खे ख़राबु कनि था ऐं माण्हुनि खे जेको आहे सो परेशान कनि। अब रुख करते हैं पंचकोर का। पंचकोर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले दफ्तर का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के सूबाई रहनुमा आगा शाह हुसैन ने की। इस मौके पर जमीयत उलमाए इस्लाम के जिले अमीर हाफिज मोहम्मद आजम बलोच, मुस्लिम लीग नून के जिले सदर कॉमरेड नसीर अहमद, जमीयत उलमाए इस्लाम के जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी अब्दुल अजहर बलोच और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर डॉक्टर नूर ने PTI से इस्तीफा देकर पीपल्स पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली। दफ्तर के इफ्तिताही तकरीब से जमीयत उलमाए इस्लाम के जिले अमीर हाफिज मोहम्मद आजम बलोच, आगा शाह हुसैन, हाजी अब्दुल अजीज, कॉमरेड नसीर ने खिताब करते हुए कहा कि पंचकोर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर का कयाम नेक शगुन है और पीपल्स पार्टी के साथ हमारे काफी पुराने मुरासिम हैं। 1973 के आइन को तरतीब देने में भी हमारे अकाबरीन मौलाना मुफ्ती महमूद ने भुट्टो का साथ दिया
और कादियानियों की गैर मुस्लिम करार देना भुट्टो का अजीम कारनामा था। पीपल्स पार्टी चूंकि एक मुल्क गीर जमात है, पंचकोर की सतह पर इसका मुतहर्रिक होना अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि नजरिया और फिक्र पर कोई कदगन नहीं है। सियासी जमातों को चाहिए कि वो अवाम के इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम अज़ कम एक नुक्ते पर मुत्तफ़िक हो जाएं और नजरिया और फिक्र से बलातर होकर सोचे। उन्होंने कहा कि मकरान के हालात को एक मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी के तहत खराब किया जा रहा है। वलीदा का वाकया जहां पुलिस ने छापे के दौरान बच्चों को शहीद किया और औरतों को जख्मी किया। उन्होंने कहा कि हिदायतुर रहमान ने कोई जुर्म नहीं किया, अवाम के हकूम और ज़्यादतियों पर आवाज़ उठाया है, जिसकी पादाश में उसे रोकना हम समझते हैं कि हुकूमत की बौखलाहट है। हुकूमत अगर हिदायतुर रहमान के एक जलसे से इस कदर खाइफ है तो जब मकरान के अवाम सड़कों पर आएंगे तो इसकी क्या हालत होगी। उन्होंने कहा कि हमसे ज्यादा चोर और डाकू मुतहिद हैं, उनको जहां भी वारदात करनी होती है वो इकट्ठा होकर निकलते हैं। पंचकोर चतकान बाजार के सब्जी मंडी का वाकया हमारे लिए सबक आमोज है। आगा शाह हुसैन ने कहा कि पीपल्स पार्टी की सियासत जमहूरियत और पार्लियामेंट की बलादस्ती के लिए है। ऑल पार्टीज की सरबराही के लिए हाफिज मोहम्मद आजम एक मौजूद शख्स है। बॉर्डर की वजह से अवाम तंग है। ऑल पार्टीज की जदोजहद से माजी में पंचकोर का अमन लौट आया था। अब दोबारा उम्मीद कर रहे हैं कि इसी फ्लैट के जरिए अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चलें, जुल्म की इंतहा हमारे मुहाफिज ही जालिम का साथ देने में बराबर के शरीक। पंजाब पुलिस की वर्दी तो बदली मगर जमीर आज तक न बदल सके। इस तब्दीली सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। औरतों का तशद्दुद के साथ सर के बाल भी काट दिए गए। मेलसी में कब्जा माफिया का राज, इलाकाई पुलिस तमाशाई बनी रही। कब्जा माफिया ने ना खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया बल्कि परवीन माई के सर के बाल भी काट दिए। मेलसी के इलाके मोजान जिला जेम बासर कब्जा माफिया के सरगना मास्टर नवाज और इनके बेटों ने 10 मरला प्लॉट खरीदने वाले खानदान के घर पर धावा, दिन दिहाड़े जबरदस्ती घर में घुस गए। चादर चार दीवारी का तकद्दुस भी बमाल कर दिया। साथ घर में मौजूद खवातीन और मर्दों पर तशद्दुद भी किया और खवातीन के सर के बाल भी काट दिए। जब थाना सदर मेलसी को 15 पर इत्तला दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची तो डीएसपी SHO को बासर अफराद कब्जा माफिया की तरफ से 3 लाख रुपए रिश्वत दी गई तो पुलिस के तेवर ही बदल गए। मुल्जिमान के खिलाफ आने वाले पुलिस मुल्जिमान की फेवर करने लगे, जिसकी वीडियो मुतासरा खानदान ने बना ली। मजीद इस हवाले से देखते हैं ऑन न्यूज के चीफ रिपोर्टर ख्वाजा सकलैन की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मेलसी के इलाके जल्ला जीम बस्ती नूरी खमीसी में। यहाँ अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन के साथ तशद्दुद किया गया। इलाके के उबाश दरिंदों ने कब्ज़ा करने की कोशिश की है उनके घर पर। इनका ये कहना है कि ये घर हमने परचेज़ किया दूसरी पार्टी से, लेकिन दूसरी पार्टी उनके साथ साजबाज हो गई है। उनकी ख़वातीन के ऊपर अपनी तरफ से जो है उन्होंने आग लगा दी, इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा दिया है, जबकि हमारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती हुई है। उनके बाल काटे गए हैं, उन्हें बराना किया गया है, चादर और चार तवारी का तकद्दुस पमाल किया गया है। अब हम इनसे बात करेंगे इलाकाई पुलिस ने क्या मौका इख्तियार किया है, इनके साथ कोऑपरेट किया है, इनकी कार्रवाई की है या नहीं की। मजीद हम उनके घर में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये कैसे मामला हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे मारने वाले, औरत को किसने मारा और आपकी औरतों को किसने मारा और जलाया किसने, ये सारा मामला क्या हुआ, कैसे बताएं। रियाज अहमद है मेरा नाम, मैं यहीं का रहायश हूँ नूरी खमीसी का। मेरे भाई ने प्लाट लिए, असा उनके उत्ते बैठे आसे मास्टर नवाज है जला जीम का, वो जगह गिरी उन्होंने को काफ़ी बंदे ने, उन्होंने 50-60 बंदा अजकल साढ़े को जिस टाइम आए था, उन्होंने साढ़े औरतों को घसीटते रहन ते वाल भी पटेंदे रहन ते सर जी ये जख्म मेरे को खड़े ने, मेरा दंद भी त्रुटा खड़े ते लिहाजा साढ़े से मेहरबानी करे वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साड़ी कोई रिक्वेस्ट सुनन। असा गरीबों की कोई नहीं सुनता पिया, ना पुलिस साड़ी ने सुनती पई है, ना कोई सुनती पई है। उत्ते कर उन्हें रिश्वत ले लीए, असा भाज भाजता दूजी नवारे खड़ो गए हैं, साढ़े नालों कोई मामला नहीं करेंगे पे। औरत को जरा ना आप जी को तेजाब साड़ते थे, अपना पेट्रोल साड़ते तो ना आग लगी। वो कौन लोग हैं जहाँ आग लगी? वो मास्टर नवाज आई ते एक भी है, वो अपना दूजा बंदा आई पिया, असा और उड़े खड़िया से, उन्होंने भा लाइए ना उनका कुड़ियां का
अच्छा चलो उन्हें दूजी पार्टी ने खुद बाह लाई है जी जी दूजी पार्टी तुसा कोई बाह नहीं लाई असा कोई बाह नहीं लाई साढ़े को कुरान चवण है असा कुरान चवण को तैयार हैं और उस तो बाद साढ़े को जिथे सफाई लेवन को तैयार है असा बिल्कुल भी तैयार बैठे हैं इस टाइम भी जिथे भी मेरे को कसम लवन सारा कोई बंदा चुन लवन अगर असा बाह लाई होवे सारा कोई सबूत हो वने या कसम ते हो वने जो जोर जैसा सजा कर को 15 ते असा कॉल कीते इथे आइए उन्हां दे रल राल ते साडे नाल तशद्दुद कीता गया है मैल सी असा गए डॉक्टरी करावन उथे भी तना तशद्दुद कीता गया है। हमारे वजीर आज़म साहब मदीना की रियासत की बात करते थे वहीं हमारे मुहाफिज उल्टा हमें तहफ़्फ़ुज़ देने की बजाय मुल्ज़मान का साथ देते हैं साज़बाज करते हैं। इनका ये कहना था कि रिश्वत दी गई है बाकायदा तौर पे मुतल्लिका पुलिस को और जब रिश्वत दी गई है उसकी फुटेज भी ली गई है तो DSP साहब और SHO साहब ने वो फुटेज जो है उनसे जो बना रहा था उसकी डिलीट की गई है और लिहाजा अब इनका मौक़िफ़ ये है कि हमें इंसाफ दिया जाए और इनके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। उल्टा हमारे जो मुल्ज़मान हैं वो दनदनाते फिरें और हमें संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं और हमारे ऊपर जो है मुल्ज़मान ने झूठा मुकदमा इंदराज कर दिया है। अगर हमें इंसाफ ना मिला तो हम अपने अहले खाना के साथ खुदसोजी कर लेंगे। कैमरामैन वरीद शेख के साथ ख्वाजा सिकलैन ऑन न्यूज़। अब रुख करते हैं साहिवाल का। साहिवाल मेडिकल कॉलेज में सीनियर एडमिन ऑफिसर डॉक्टर शफकत रसूल की रिटायरमेंट के मौके पर मेडिकल कॉलेज में इनके एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें तमाम डॉक्टर्स ने शिरकत की। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल की इस रिपोर्ट में। साहिवाल मेडिकल कॉलेज के सीनियर एडमिन ऑफिसर डॉक्टर शफकत रसूल अपनी सर्विस मुकम्मल करने के बाद रिटायर्ड हो गए। सर्विस के आखिरी रोज कॉलेज के फैकल्टी मेंबरान और इंतजामिया अफसरान ने इन्हें अलविदा किया और फूलों गुलदस्ते पेश किए। प्रिंसिपल डॉक्टर राशिद कमर राव ने कॉलेज के लिए इनकी खिदमात को सराहा है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाजमत के आखिरी रोज डॉक्टर शफकत रसूल से कॉलेज के IT सेल का भी इफ्तिताह कराया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शफकत रसूल का कहना था कि मैं बतौर एडमिन डायरेक्टर मेडिकल कॉलेज साहिवाल में अक्टूबर 2019 से अपने फराइज सरअंजाम दे रहा हूँ। इसी दौरान अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे तरीके से निभाते हुए कॉलेज के हालात पहले से बेहतर किए हैं। हमारे डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम हैं जो हमने शुरू किए हैं, जल्द ही मुकम्मल हो जाएंगे। इंशाल्लाह साहिवाल मेडिकल कॉलेज पंजाब में मिसाली कॉलेज बनेगा। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राशिद कमर राव ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। हमारे बहुत ही पुराने दोस्त साथी और साहिवाल मेडिकल कॉलेज के बहुत ही पुराने डॉक्टर शफकत रसूल को अलविदा कहा है। आज इनकी 60वीं सालगिरह और रिटायरमेंट का दिन है। तमाम फैकल्टी आज इकट्ठी हुई, इनकी मोहब्बत में अपने जज्बात का इजहार किया। हमारी सबकी दुआएं इनके साथ हैं। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। मयारी सस्ती सब्जियों और फलों की अराजा नरखों पर फरोख्त के लिए जिले इंतजामिया मुतहर्रिक। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद ने सुबह सवेरे सब्जी फरूट मंडी का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर जोहा शाकर, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी, दीगर अफसरान भी साथ मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी मंडी में सब्जियों फरूट की बोली के अमल का जायजा लिया और अपनी निगरानी में बोली करवाई। महंगाई में मुलव्विस अनासर कोई रायत के मुस्तहिक नहीं। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद का ये कहना था। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम जरूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। टोबा टेक सिंह सब्जी मंडी के दौरों का मकसद आवाम को महंगाई से बचाना और कीमतों का अतदाल में रखना है। मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोज कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सियालकोट DSP सर्कल संभड़याल की सरबराही में SHO थाना संभड़याल शेराज चीमा और ASI इरफान ढल्लू की कार्रवाई। मुखबर की इतला पर भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक SHO थाना संभड़याल और ASI इरफान ढल्लो ने पुलिस मुलाजमीन के हमरा गर्ल्स डिग्री कॉलेज टस्का रोड के करीब छापा मारकर 2 मुल्जिमान को काबू करके भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। मुल्जिमान गुजरांवाला से शराब लेकर संभड़याल में फरोख्त करने के लिए आ रहे थे कि थाना संभड़याल पुलिस ने शराब की फरोख्त को नाकाम बना दिया। UC मुलाजिम उमर भट्ट ने फौरी तौर पर SHO थाना संभड़याल शिराज चीमा से राब्ता करके सारे मामले से आगाह किया। SHO ने कार्रवाई अमल में लाते हुए ASI इरफान ढोलों समेत UC शमाली के एहलकारों के हमरा डस्का रोड नस गर्ल्स डिग्री कॉलेज के करीब छापा मारकर मुल्जिमान एजाज उर्फ जज्जी सकना कामों की और इरफान सकना संभड़याल को गिरफ्तार कर लिया और दौरान तलाशी गाड़ी से भारी मिकदार में शराब भी बरामद कर ली। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। DPO सियालकोट ने मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार करने पर SHO थाना संभड़याल शिराज चीमा समेत उनकी पूरी टीम को शाबाश भी दी। कोटअद्दू से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शहबाज खान की रिपोर्ट के मुताबिक कोटअद्दू में अपोजिशन जमातें मैदान में उतर आए। कोटअद्दू में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तफसीलात के मुताबिक कोटअद्दू प्रेस क्लब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल सदर मीर आसिफ खान दस्ती ने बढ़ती हुई महंगाई और कोटअद्दू में होने वाले तरक्याती कामों की करप्शन के बारे में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, आइए आपको भी बताते हैं। रेट बढ़ा दिए जाए, बस कोई किल्लत पैदा की जा रही है।
माफिया इक़्तिदार में बैठा है, गैर मुंतखब लोगों को काबीना में शामिल किया गया, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसी तरह तेल की कीमतें आप देख लें कि इस टाइम क्या रेट हो चुके हैं और अभी तक कोई कहीं नहीं रुक रहा। हर हफ्ते तेल के निर्खों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। तेल के रेट में इजाफे से हर चीज़ के रेटों में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आटे का देख लें, इस टाइम आटा 70 से 80 रुपए किलो मिल रहा है। अभी तक सर्दियाँ भी नहीं आई हैं, सर्दियों में मज़ीद रेट बढ़ गए। गरीब आदमी जो 500 रुपये दिहाड़ी लेता है वो आटा खरीदे, चीनी खरीदे, मेडिसिन खरीदे, क्या खरीदे? उसको तो खुदकुशी के ऊपर मजबूर किया गया है। इस नालायक, नाअहल और ज़ालिम हुकूमत ने मुल्क के गरीबों से, लोगों से निवाला भी छीन लिया। आटा, चीनी, घी के रेटों में इजाफा देख लें, 140 रुपये से आज 340, 330 रुपये तक पहुँच गए। इसी तरह अद्वियात के निर्खों में इजाफा देखें, 400-500% अद्वियात महंगी हो चुकी है। हॉस्पिटल में एक पैनाडॉल की टैबलेट तक नहीं मिलती। जो टेस्ट हैं उनके रेट में भी इजाफा हो गया। जो भी मरीज जाते हैं उनकी ठीक ना केयर होती है। डॉक्टरों की पहली कोशिश ये होती है कि कोई अगर पेशेंट देखते हैं तो वो कहते हैं कि जी इनको फ़ौरन मुल्तान ले जाएं, निश्तर ले जाएं। यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। इसी तरह बिजली के निर्ख में देखते हैं कि आज एक यूनिट, फी यूनिट 25 से 26 रुपए का हो गया। ना ही किसी चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है। बिजली, गैस, तेल, घी, आटा, दालें, चावल, कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है और बेरोजगारी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जो नारा इस नालायक हुकूमत ने लगाया था कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे, 50 लाख घर देंगे, आज मैं समझता हूँ कि 1 से 2 करोड़ लोगों को तो बेरोजगार किया गया है। महकमे के महकमे ख़त्म किए जा रहे हैं। उन महकमों से सरकारी मुलाजमीन को फारिग किया गया है। जिनको नवाज शरीफ हुकूमत ने फारिग किया था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने उनको बहाल किया था, लेकिन आज फिर उन्हें निकाल दिया गया। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर इक़्तिदार में आकर इन लोगों को बहाल करेगी। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी ये बयान दिया था, जिसकी उन्हें सज़ा मिली थी, जेल में डाल दिया गया था नौकरियाँ देने के उससे, उन्हें ये बयान किया। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद नासिर खैली का गोशरा रेलवे स्टेशन का सरप्राइज विजिट, रेलवे स्टेशन गोशरा की इंस्पेक्शन की गई। तफसीलात के मुताबिक गोशरा डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद नासिर का अपनी पूरी टीम, जिनमें डिवीजनल कमर्शियल ऑफिसर अनवर सादत, डिवीजनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफिसर शाहिद रसा, डिवीजनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वासिफ इकराम के साथ सरप्राइज विजिट किया। रेलवे स्टेशन गोशरा की इंस्पेक्शन के गोशरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर रेलवे मुलाजमीन ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते भी पेश किए। मोहम्मद नासिर ने अरसा दराज से टूट फूट का शिकार बिल्डिंग को इंतहाई खतरनाक करार दिया और मुतल्लिका अफसरान को इसकी फौरी तामीरात का हुक्म दिया। लाहौर से कराची जाने वाली अलबदर एक्सप्रेस ट्रेन को चंद रोज तक बहाल कर दिया जाएगा। गोशरा रेलवे स्टेशन की हालत देखकर उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। मुलाजमीन को सख्ती से अपनी हाजिरी को यकीनी बनाने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गोशरा के रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी और किसी भी किस्म की गफलत को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिवीजनल सुपरिटेंडेंट रेलवे लाहौर मोहम्मद नासिर की आमद पर आज गोशरा के रेलवे स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया गया और तमाम मुलाजमीन ने भी अपनी अपनी वर्दी पहनी हुई थी। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि डिवीजनल सुपरिटेंडेंट नासिर ने रेलवे स्टेशन से मुतल्लिका तमाम कैबिन को भी चेक किया, जिसका मकसद रेलवे के निज़ाम को बेहतर बनाना है और रेलवे पर सफर करने वाले अफराद को महफूज सफर फराहम करना है। दूसरी जानिब अवाम ने रेलवे के हवाले से शिकायत भी की, जिनके अजाले के लिए फौरी अहकामात जारी किए जाएंगे। दूसरा नंबर शशाब हुसैन है हमारे यहाँ सर की जाती है। फैसिलिटीज तो लोगों ने कहना है कि पहले बेहतर है कि नहीं है, तो अर्निंग के हिसाब से तो बेहतर है, जाहिर है बेहतर थी तो दे दी, अगर बेहतर ना होती तो हम क्यों कहते हो। खबर शामिल करते हैं मानावाला से। मानावाला की हदूद में एक और खातून ज्यादती का शिकार हो गई। मुलजिम की खातून को शादी का झांसा देकर मुबैना ज्यादती। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम बशीर 3 माह तक खातून को हबस बजा में रखकर मुबैना ज्यादती का निशाना बनाता रहा। खातून नुसरत ने निकाह का मुतालबा किया तो मुलजिम इस पर तशद्दुद करता रहा।
मुलजिम ने तशद्दुद के बाद अपने दोस्तों को बुलवाकर भी मुझसे ज्यादती करवाई, खतून का इल्जाम है। मानावाला मुलजिमान ज्यादती करते वक्त मेरी वीडियो भी बनाते रहे। ज्यादती का शिकार खतून ने तहरीरी दरख्वास्त मानावाला में जमा करवा दी। मानावाला पुलिस ने खतून की दरख्वास्त पर ताहाल कोई कार्रवाई ना की। खतून की आईजी पंजाब और डीपीओ से इंसाफ की अपील है। ऑल पाकिस्तान म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन सरगोदा की जानिब से मलिक शाहिद अवान, रीजनल सदर राना हनीफ, रीजनल रहनुमा राना शौकत, राना अफजाल मलिक सिकंदर और दीगर रीजनल रहनुमाओं की 25 स्पेशल अनाउंस दिलवाने इजहार तशक्कर के और रीजनल बॉडी के हलफ के मौके पर मरकजी सदर म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन पाकिस्तान मोहम्मद खालिक अलवी, सैयद साजिद बुखारी, मरकजी जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन पाकिस्तान एजाज अलवी अवान, मरकजी रहनुमा अफजल रहमान मलिक, साजिद शेख गुलाम, मुस्तफ़ा मेहर, कौसर अब्बास तारड़, डिवीजनल दीगर रहनुमा ऑल पाकिस्तान म्यूनिसिपल एम्प्लॉयज फेडरेशन सरगोदा के शाहीनों की जानिब से भरपूर इस्तकबाल। तकरीब में मेहमान गरामी मलिक मुनव्वर इकबाल और चौधरी फैसल फारूक MPA पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की खसूसी आमद। एक एक बच्चा भी नौकरी लगाया गया। तो मैं आज की इस बज़्म से, आज की इस महफिल से आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद भी देता हूँ और ये आपको तलकीन भी करता हूँ कि आपने इत्तेहाद का अलम नहीं छोड़ना, इत्तेहाद का परचम नहीं छोड़ना, इस इत्तेहाद के परचम ही को लेकर चलना है। बहावल नगर पुलिस की जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयाँ। मुजरिमान, इश्तिहारी, अदालती मफरूरान, पेशा वर भिकारी, आदि मंशियात फरोश और असला नाजायज रखने वाले मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। DPO बहावल नगर। तफसीलात के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब राव सरदार अली खान के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर बहावल नगर मोहम्मद जफर बुज़दार की हिदायत पर बहावल नगर पुलिस जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों में मसरूफ है। पुलिस ने जिला भर से 7 मुजरिमान, इश्तिहारी और 3 अदालती मफरूरान को गिरफ्तार किया। जिले पुलिस ने पेशावर भिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए 3 भिकारियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह जिला भर में पुलिस ने मुंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए मुलजिमान के कब्जे से 550 ग्राम चर्स, 495 लीटर शराब और 1 चालू भट्टी बरामद की। मजीद असला नाजायज रखने वाले मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 मुकदमात का इंदराज किया। मुलजिमान के कब्जे से 5 पिस्टल, 30 बोर और 16 कारतूस बरामद किए गए। मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात का अंदराज करके तफ्तीश का अमल जारी है। खबर शामिल करते हैं तहसील चौबारा से अपने नुमाइंदे उमर हसन की रिपोर्ट के मुताबिक चौबारा का आबाई इलाका नवा कोट करियाली वाला का, जहां पर मोहम्मद पहलवान कौमथंद अपने बेटे लारेब और रिश्तेदारों आशिक हुसैन, गुलाम यासीन और मुनीर हुसैन के साथ इंसाफ के लिए तहसील प्रेस क्लब चौबारा का रुख कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद पहलवान अपने बेटे लारेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारा वरासती रकबा मौसा नवा कोट चा करियाली वाला पर वाक़या है, जिस पर हम अरसा दराज से काबिज हैं और काश्त कर रहे हैं। चंद शरपसंद अनासिर गुलाम कासिम थंद, हाजी खान मोहम्मद और हक नवाज जो कि स्पोर्टर हैं, रमजान सुल्तान सगे भाई हैं, जो कि आए रोज झूठी दरख्वास्त देकर हमें हरासा करते हैं और हमारे वरासती रकबे पर जबरदस्ती कब्जा जमाना चाहते हैं। वाज़िया रहे कि रकबा मरकूज का सालसी फैसला भी हो चुका है, लेकिन सालसी फैसले के बावजूद हमें हरासा किया जा रहा है। नाजायज असला दिखाकर डराते और धमकाते हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और ROP और DPO लिया से अपील है कि हमारी दादरसी की जाए और शरपसंद अनासर से निजात दिलाई जाए और हमको इंसाफ फ्राहम किया जाए। मैं पहलवान मेरे नाम तू करियाली ते मेरा ना मैं को हाजी खान को है मेरे निके निके बच्चे दिया बेड़ा ते कासिम को दे ते मेरे पिरावा ते लाल गणपति का जाके मेरे यकी हार बला कसी ने प्यू मारत बारे गया और नरक बारे ने नकाशे जो इतनी पुलिस आई गड़ी दी पुलिस आई गड़ो दिन मैं गरीब बंदा मैं मरता मैं ना कोई इमदाद करो अल्लाह वास्ते आज बंदा कोई बला साई थी वो मैं को भी कर जो आंटी अंदर टक्की कड़े जुराती मधु का रगवाड़ हुई पिछाड़ हुई और मैं केड़े पासे बच्चा मैं बैठा बता बगलर कबलरी मन बदल पागल थी के बात इतना दे आ कौन हुई ना आगे से तेरी इमदाद करेंगे मैं आंधी वैदी ये काजना आड़ पड़ा जा जाट जिया बंदा मी मेरे पुत्र निका चले ये बैठे
पीऊ दे के लिख पढ़ करके दे के साल संते नाल बार खिलाफ ना ते जेड़ा जे दरखास्त नीति करदे साल संती दरखास्त का नीतियां वो मरते साल संती दरखास्त डर कानून मेरे नेड़े लगते ही कोई नहीं। वजीर आला सारी इमदाद करे, सारे झूठियां दरखास्त देते निके निके बच्चे सारे खांदे नो साकू पुलिस नाल चढ़ा के धमकियां दे अगुआ ते बाल कुरान शरीफ ते हाड़े गते क्या बड़े। खबर शामिल करते हैं तोंसा शरीफ से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद इस्माइल रंद की रिपोर्ट के मुताबिक तोंसा शरीफ के नवाही बस्ती लांगा जनूबी में सोलर सिस्टम पर चलने वाला वाटर सप्लाई सिस्टम बंद। बस्ती लांगा के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। जब से वाटर सप्लाई का सोलर सिस्टम पर लगाया गया, ये मंसूबा जराए से मालूम हुआ कि 80 लाख से 1 करोड़ का था। ना ही मंसूबे की तख्ती मौजूद है और ना ही बस्ती लांगा के रिहायशियों को पानी मिल सका। वाटर सप्लाई की लाइन भी निकाल ली गई है। जराए से मालूम हुआ कि बस्ती के चंद लोग जो वजीर आला के खास हैं वो वाटर सप्लाई के पानी से अपने खेत सैराब करते हैं। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि सोलर पैनल पर से कई सोलर गायब हैं। वाटर सप्लाई के कमरे पर ताले लगे हुए हैं। अवाम ने डीसी डेरा गाजी खान, कमिश्नर डेरा गाजी खान, असिस्टेंट कमिश्नर तोंसा और सीएम पंजाब से नोटिस लेकर इंक्वायरी करने और कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ऑन न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात और तफसीलात से आगाह रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज।